if P is to the south of Q and R is to the east of Q, in which direction is P with respect to R? So P is to the south of Q. So जो P है वो Q दे की है साउथ विच है, एंड R is to the east of Q. R है जिहड़ा वो Q दे किधर है, ईस्ट है. In which direction is P with respect to R? So P किधर है R दे हिसाब नाल. So इधरली साइड की होएगा फिर? आंसर ए, साउथ वेस्ट. ऊपर की हुंदा है, नीचे की हुंदा है, इधर की हुंदा है, इधर की हुंदा है. सो जे मैं कोई परसन इत्थे आ रहा है, सो जे उत्थे इहदे इधरली साइड मैं कोई दसना होवे, की किधर होएगा? इधर की होएगा, इधर की होएगा, इधर की होएगा. सो इधरली साइड में साउथ वेस्ट ही दसूंगा, तो फिर साउथ वेस्ट ही. नहीं, अब जे कोई परसन इत्थे खड़ा है ਉਹਦੇ भी साउथ विच है इधर, जे कोई परसन इत्थे ਉਹਦੇ भी साउथ विच है, जे कोई परसन इत्थे खड़ा ਉਹਦੇ भी साउथ विच है. कोई परसन जे इत्थे, कोई परसन जे इत्थे है, देखो थोड़ा ध्यान ना, नीचे की है, इधर की है, इधर की है, तो फिर मैं आर दे हिसाब नाल दसदा रहा इधर साउथ वेस्ट है. बिल्कुल. जे मैं कमा, जे मैं कमा कऊ क्यू कऊ कह रहा हूँ, जे मैं कहा क्यू दे ईस्ट विच आर है, तो फिर आर दे वेस्ट विच क्यू नहीं होएगा, क्योंकि आर दे भी वेस्ट च क्यू, ईस्ट च क्यू हो गया. सो अच्छा, मैं जे मैं कहा पी, पी दे नॉर्थ विच क्यू होएगा, क्यू दे साउथ विच पी है, तो पी दे तो नॉर्थ च ही होएगा ना क्यू. डायरेक्शन ऑपोजिट होएगी कि नहीं? जे मेरे कोई नॉर्थ खड़ा होएगा वो, फिर तो मैं तो साउथ ही होऊंगा. नहीं समझ आ रही? ਹੁਣ ਜੇ मैं पी ਨੂੰ ਬੇਸ ਲਵਾਂ, पी ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਰਥ ਹੈ, ਤੇ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਹੀ ਹੋਏਗਾ. ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆਰ ਦੇ ਕਿੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਖੜਾ ਹੈ, ਆਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਥੋੜੀ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹ, ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ. ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ, ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ. ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗੀ. ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕੀਤਾ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁਣ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਈਸਟ. ਜੋ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੈਸਟ. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਬੇਸ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬੇਸ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋਗੇ ਨਾ. ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. ਨੈਕਸਟ, ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲੇ ਸਾਰਾ ਬੇਸਿਕ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ. 10th ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ. ਰਾਜੂ ਟਰੈਵਲਡ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਈਸਟਵਰਡ. ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੇਸ ਲਿਆ,
ਇੱਥੇ ਰਾਜੂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਈਸਟਵਰਡ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਈਸਟਵਰਡ ਦੈਨ ਟਰਨਡ ਲੈਫਟ ਐਂਡ ਟਰੈਵਲਡ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਲੈਫਟ ਕਿੱਧਰ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੈਕਸਟ ਹੀ ਟਰਨਡ ਲੈਫਟ ਐਂਡ ਟਰੈਵਲਡ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੁਣ ਇੱਧਰੋਂ ਲੈਫਟ ਕਿੱਧਰ ਹੋਏਗਾ इधरली साइड 7 किलोमीटर क्योंकि नीचे 7 से ऊपर 7 सेम डिस्टेंस हो जाएगा हाउ फार वॉज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट तो कितनी दूर है आंसर इज 5 किलोमीटर बिल्कुल ये तो ईजी है यस क्वेश्चन नंबर 11 to 15 all the roads of a city are either perpendicular or parallel to one another so what is perpendicular this is perpendicular and what is parallel this is parallel all the roads of a city are either perpendicular or parallel to one another the roads are straight all through ਜਿਹੜੀਆਂ roads है वो straight है मतलब सीधियां चलदियां roads A B C D and E are पैरेलल टू वन अनदर सो ए बी सी डी इस तरह पैरेलल है या तो इदा हो सकती है या इदा हो सकती है आर पैरेलल टू वन अनदर रोड जी एच आई जे के एल एंड एम आर पैरेलल टू वन अनदर सो ए बी सी डी ई एक दूजे के पैरेलल है इसी तरह जी एच आई जे के एल एम ए एक दूजे के पैरेलल है रोड ए इज 1 किलोमीटर ईस्ट ऑफ रोड सी सो रोड ए इज़ 1 किलोमीटर ईस्ट ऑफ रोड सी सो आप कोई रोड सी लिया ਉਹਦੇ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਰੋਡ ਏ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰੋਡ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵਾਲਾ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ठीक है सो एक इधर रोड है तो वो ईस्ट में एक इधर रोड है इज इट क्लीयर तो बिच डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर सो ये रोड हुण ऐदा नहीं हो सकता इज इट क्लीयर क्योंकि आ रोड है तो फिर तो सीधा ही चलता रहेगा मीट कर जाएगा ठीक है सो ये रोड आप कितना लवांगे एक ऐदा रोड है तो एक ऐदा रोड है सो दैट मीनस इस तरह पैरेलल हो सकते हैं तां ही आपां उहदे ईस्ट विच कवांगे तो या उहदे वैस्ट विच कवांगे रोड बी इज 1/2 किलोमीटर वैस्ट ऑफ रोड सी रोड सी दे वैस्ट विच इधर हो जाएगा सो इत्थे रोड बी आ जाएगा ठीक है जो कि कितना दूर है 1/2 किलोमीटर रोड सी तो रोड डी इज 1 किलोमीटर वैस्ट ऑफ रोड ई रोड डी इज 1 किलोमीटर वैस्ट ऑफ रोड ई इत्थे डी ते ई तो है नहीं इन्हू सैपरेटली लिखते हैं रोड डी इज 1 किलोमीटर वैस्ट ऑफ रोड ई सो रोड ई लवांगे आप बेस ठीक है ये 1 किलोमीटर वैस्ट के आप लवांगे सॉरी रोड डी इज़ 1 किलोमीटर वैस्ट ऑफ रोड ई सो एक्चुअली रोड ई आप इत्थे लवांगे तो वो 1 किलोमीटर वैस्ट के आप की ले लांगे रोड डी रोड जी इज़ 1/2 किलोमीटर साउथ ऑफ रोड एच सो रोड जी है जो वो 1/2 किलोमीटर साउथ ऑफ रोड एच है सो इत्थे भी एच जी है नहीं किते सो आप सैपरेटली एक एच रोड लवांगे तो वो 1/2 किलोमीटर नीचे साउथ दे विच किहड़ी रोड होएगी जी तो ये फिर रोड आप इस तरह ले लांगे ये समझ आ रहा है कि नहीं क्योंकि ये रोड फिर आप इदा नहीं ना लै सकते क्योंकि फिर उस इधर नीचे आ जाएगी वो मेट कर जाएगी तो फिर आप इदा नहीं रोकांगे रोड सो इदा रोड होएगा तो वो 1/2 किलोमीटर नीचे इधर रोड होएगा इज इट क्लियर सो रोड जी इज़ 1/2 किलोमीटर साउथ ऑफ रोड एच एच दे 1/2 किलोमीटर साउथ के आप जी लवांगे रोड आई इज़ 1 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ रोड जे आई जे इतने कितने है नहीं सो आप एक आई लवांगे रोड तो वो रोड आई इज़ 1 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ रोड जे वो सॉरी आप बेस जे लेना सी जे दे 1 किलोमीटर नॉर्थ दे विच आपां की लवांगे रोड आई रोड के इज़ 1/2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ रोड एल
ਸੋ ਰੋਡ ਕੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਫ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਨਾਰਥ ਆਫ ਰੋਡ ਐਲ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੇਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਲ। ਸੋ ਐਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਲ ਰੋਡ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹਾਫ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਰੋਡ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੇ। ਰੋਡ ਕੇ ਇਜ਼ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਊਥ ਆਫ ਰੋਡ ਐਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰੋਡ ਕੇ ਇਜ਼ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਊਥ ਆਫ ਰੋਡ ਐਮ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੇ ਹੈ ਉਹ ਐਮ ਰੋਡ ਦੇ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਊਥ ਹੈ। ਸੋ ਐਮ ਰੋਡ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਊਥ ਤੇ ਕੇ ਹੋਏਗਾ। ਇਜ਼ ਇਟ ਕਲੀਅਰ? ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬਿਟਸ ਐਂਡ ਪਾਰਟਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਨੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਛ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ 3 ਰੋਡਸ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ, ਆਹ 2 ਹੈ, 2 ਹੈ, 2 ਹੈ, 3 ਹੈ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੇ ਬੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੁਛ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਚੋਂ? ਕੁਐਸਚਨ 11th ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਟਰੂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਟਰੂ ਹੈ? E ਐਂਡ B ਇੰਟਰਸੈਕਟ। ਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੋ C ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਧਰ ਕੌਣ ਸੀ, A, ਤੇ ਇੱਧਰ ਸੀਗਾ ਹਾਫ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੌਣ, B। E ਐਂਡ B ਇੰਟਰਸੈਕਟ। E ਤੇ B ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ, E ਤੇ D ਅਲੱਗ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ? D ਇਜ਼ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੈਸਟ ਆਫ A। D 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਵੈਸਟ ਆਫ A, ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। D is 2 kilometer east of A. M is 1.5 kilometer north of L. ਸੋ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ D ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ D A ਵਗੈਰਾ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਸ 'ਚ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ M is 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਾਰਥ ਆਫ L। ਸੋ L ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਈਏ ਹਾਫ ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਰ 1 ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ M ਆ ਜਾਏਗਾ। ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ? ਸੋ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, D। Question number 12. If E is between B and C, which of the following is true? ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ E is between B and C, between ਮਤਲਬ which. So if E is between B and C, which of the following is true? So E ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ B and C ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ B ਐਂਡ C ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਫ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ E ਲੈ ਲਈਏ, ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ 1/4 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਡਿਸਟੈਂਸ B ਤੇ E ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ 1/4 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵੀ ਅੱਧਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ E ਤੋਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸੋ ਆ ਇੱਧਰ ਤਾਂ 0.25 ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ 0.75 ਹੋ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ 3/4 ਹੋਰ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ, ਤਾਂ D ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ D ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ E ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ, 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਕੀ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਸੋ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਟਰੂ? D ਇਜ਼ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੈਸਟ ਆਫ A। D ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ A ਦੇ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੈਸਟ 'ਚ ਹੈ। ਨਹੀਂ, A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ C ਤੱਕ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀਗਾ, ਤੇ E ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ D ਤੱਕ ਵੀ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਸੋ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 0.25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਸਟਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ? ਸੋ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ D is 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੈਸਟ ਆਫ A, ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। C is less than 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫਰੋਮ D। ਜਿਹੜਾ C ਹੈ ਉਹ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫਰੋਮ D ਹੈ। D ਤੋਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ E ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ C ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ B ਹੈਗਾ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, C ਥੋੜ੍ਹੀ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਆ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। C distance from E to B added to distance of E to C is 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ E to B ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ E to C ਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰੀ ਤਾਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਸੋ E to B ਤੇ E to C, ਕੀ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮਿਲਾ ਕੇ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? E ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ B ਤੱਕ ਤੇ E ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ C ਤੱਕ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮਿਲਾ ਕੇ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਨੋ, ਕਿਉਂਕਿ E to B 1/4 ਹੈ ਤੇ E to C ਵੀ 1/4 ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ B ਤੇ C ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤਾਂ ਹਾਫ ਸੀਗਾ, ਹਾਫ ਕਿਲੋਮੀਟਰ।
यस और नो? ये भी गलत हो गया। नन ऑफ दी अबव, सो आंसर एक्चुअली साडा की आ जाता है नन ऑफ दी अबव, क्योंकि ये किसी ना मैच थोड़ी करता है। यस और नो? आई होप तुहानू क्लीयर हो रहा है। नेक्स्ट करिए। इफ E is between B and C, again आ सेम कंडीशन है, E ਨੂੰ ਆਪਾਂ B ਤੇ C ਦੇ ਗੱਬੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, then distance between A and D is, ਜਿਹੜਾ distance ਹੈ A ਤੇ D ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਸੋ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ D ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਸੋ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ C ਤੱਕ ਹੈ, E ਤੋਂ D ਦਾ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਗੱਬੇ 1.25 ਹੈ, ਸੋ 2.25 ਹੋ ਜਾਏਗਾ किलोमीटर। ऑप्शन देता है नहीं, सो आंसर क्या रहेगा? नन ऑफ दीज, अगेन फिफ्थ और फोर्थ। क्या क्लियर हो गया है? विच आर द फॉलोइंग possibilities would make two roads coincide if E is between B and C? सेम कंडीशन दी है, कहता किहड़ियां आपस दे विच कोइनसाइड करदियां, मतलब आपस कनैक्ट करदियां। L is हाफ किलोमीटर नॉर्थ ऑफ I, L ते I दा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। C is 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ D, C 1 किलोमीटर है वेस्ट ऑफ D ना, एक्चुअली C तो D दे ईस्ट विच है। I is हाफ किलोमीटर नॉर्थ ऑफ K, I है जिहड़ा वो हाफ किलोमीटर नॉर्थ ऑफ K है, I ते K दा कोई रिलेशनशिप नहीं है। अगेन आंसर क्या रहेगा? नन ऑफ दीस, नन ऑफ दी अबव। इज इट क्लियर? इफ X is 1/2 किलोमीटर साउथ ऑफ T, X ते T दिते हुए सानू नहीं, सो आप एक कंडीशन ले लेने, वो कहना जे X है वो हाफ किलोमीटर साउथ ऑफ T है, सो एक T रोड होएगी, वो हाफ किलोमीटर आप की ले लेने, साउथ विच की ले लेने X। इज इट क्लियर? इफ X इज हाफ किलोमीटर साउथ ऑफ T एंड 1 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ G, तो एक G रोड ले लेने आप, वो 1 किलोमीटर की कर दी X नू नॉर्थ विच, सो X जिहड़ा है वो T दे साउथ दे विच है बट G दे नॉर्थ विच है, सो T तो नीचे होएगा, G तो ऊपर होएगा। G आपा को इत्थे हैगा ठीक है। विच टू रोड्स वुड बी हाफ किलोमीटर अपार्ट, किहड़ियां दो रोड्स हाफ किलोमीटर दूर हो गया। सो जे आप इनू कनैक्ट करिए, G तो 1 किलोमीटर X उपर है, सो G तो हाफ उपर H है, तो ये तो थोड़ा जिहा हाफ उपर ले लांगे तो X आ जाएगा, ठीक है, तो वो तो हाफ उपर ले लांगे तो T आ जाएगा। क्या क्लियर हो रहा है कि नहीं? यस और नो? सो G तो हाफ ऊपर H आ गया, H तो हाफ ऊपर X आ गया, तो X तो हाफ ऊपर T आ गया। उन्होंने कहा कि किहड़ियां दो रोड्स हाफ किलोमीटर अपार्ट है, ये सारियां हाफ किलोमीटर अपार्ट है। इन देख लेना की ऑप्शन है I एंड X, I ते X का तो कोई रिलेशनशिप नहीं है, T X H ते G है। J एंड G, J ਦਾ भी नहीं है कॉम्बिनेशन G ना, I एंड G, I ਦਾ भी G ना कॉम्बिनेशन नहीं है। X एंड H, X एंड H ਦਾ ऑप्शन है, सो बिल्कुल, सो आंसर की आ जाता है अगेन D। उन्होंने दसो कि क्लियर है? कुछ ये पूछना है? सो ये थोड़ा क्वेश्चन सीगा 11 टू लेके 15। क्वेश्चन नंबर 16 चेक करते हैं। I walked 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट S, सो आप एक पॉइंट लवांगे S, तो उत्थे 20 मीटर किधर लवांगे? ईस्ट, तो इत्थे जिहड़ा पॉइंट आएगा वो की होएगा I, एंड देन टर्न राइट एंड वॉकड अनदर 20 मीटर, सो इतने वो राइट मूव कर देगा तो अनदर 20 मीटर वो वॉक करेगा। सो राइट किधर नू जाएगा? नीचे नू, तो वो गेन कितना मीटर जाता है? 20 मीटर, ठीक है। आई वॉक 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम द पॉइंट S एंड देन टर्न राइट एंड वॉक अनदर 20 मीटर, ठीक है। नाउ आई टर्नड टू माई लेफ्ट एंड वॉकड 10 मीटर, ठीक है। सो इत्थे हुण लैफ्ट किधर नू जाएगा? वो इधर नू कितना जाएगा? 10 मीटर। So now I turned to my left and walked 10 meter, and turning to my right I walked another 10 meter.
सो इतों हुण राइट किधर नूं जाएगा, नीचे, हुण होर 10 मीटर चला गया। फाइनली आई टर्न टू माई राइट एंड वॉकड 30 मीटर टू रीच पॉइंट एफ। सो हुण इत्थों राइट किधर जाएगा, इधर। सो एक्चुअली आ 30 मीटर इत्थे पहुंच जाएगा एस दे एकदम नीचे। वो किद्दां, क्योंकि 10 आ सीगा ते 20 आ सीगा ते 20 ते इधर नूं 10 लवां तां 30 हो जांदा टोटल। सो इत्थे आ गया, इत्थे किहड़ा पॉइंट है, एफ। एफ पॉइंट ते पहुंच गया। आई होप तुहानूं इत्थे क्लियर हो गया। What is the shortest straight distance between point S and F? Shortest straight distance between S and F तो आई होएगा, ये होया 20 ते 10। आंसर क्या आ गया, 30 मीटर। सी आंसर। किया क्लियर है। Question number 17. A postman was returning to the post office which was in front of him to the north. सो एक पोस्टमैन सी जो कि ऑफिस से रिटर्न कर रहा सी ते जिहड़ा पोस्ट ऑफिस सीगा ਉਹਦੇ फ्रंट ते सीगा नॉर्थ दे विच। Postman was returning to post office which was in front of him to the north. When the post office was 100 meter away from him, he turned to the left. ठीक है। सो पोस्ट ऑफिस जिहड़ा सीगा ਉਹ पोस्टमैन तो, लेट्स सपोज पोस्टमैन ਇੱਥੇ है, तो पोस्ट ऑफिस ਉਹ ਤੋਂ किन्ने मीटर दूर है, 100 मीटर। पोस्टमैन तो पोस्ट ऑफिस 100 मीटर अवे है, तो वो एक्चुअली किधर मूव कर जाता है, लेफ्ट। सो लेफ्ट इधर मूव कर गया। He turned to his left and walked 50 meter to deliver the last letter at CGO complex। ठीक है। सो इधर नूं गया 50 मीटर, कितना 50 मीटर, इत्थे उन्हें अपना लैटर CGO कॉम्पलैक्स के उत्ते डिलीवर करता। एंड मूव्ड अनदर 30 मीटर इन द सेम डायरेक्शन टू मीट हिज फ्रेंड। तो फिर वो सेम डायरेक्शन होर 50 मीटर गया, तो इत्थे उन्होंने उहदा की मिलिया, फ्रेंड। then he turned towards north and walked 100 meter। so ਹੁਣ ਉਹ north ਵੱਲ ਗਿਆ ਇਧਰ ਨੂੰ 100 meter। so ਆ 100 meter ਤੇ ਆ 100 meter ਹੈ, same distance ਹੋ ਜਾਏਗਾ। how far is he from the post office? post office ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ, 100 meter। so आंसर क्या आ गया, B। is it clear? 18 and 19 question. On a stage, Suman, Neeraj, Pankaj, Vinay and Vikram standing as described below, being the north। ठीक है, तो being the north की जगह facing the north होएगा, so most likely। ठीक है। so सारे दा face किधर है, north। being the north मतलब north वाले ही हो। नीरज is south of Vinay, so पहला आप विनय लवांगे, ते नीरज ओदे किथे आ जाएगा, साउथ विच होएगा ਉਹਦੇ। सुमन इज साउथ ऑफ नीरज। सुमन नीरज दे भी की है, साउथ है, ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ। पंकज इज वैस्ट ऑफ नीरज। नीरज पंकज ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ नीरज ਦੇ वैस्ट ਵਿੱਚ है। विक्रम इज ईस्ट ऑफ नीरज। विक्रम है जिहड़ा वो नीरज दे, चलो सानू सारे पता लग गए, नीरज दे ऊपर विनय है, नीरज दे नीचे सुमन है, नीरज दे ईस्ट विच सॉरी वैस्ट पंकज है, नीरज दे ईस्ट विच की है, विक्रम है। चारों कंडीशंस आप लिख ली हैं। क्वेश्चन है, हु इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ पर्सन हु इज टू द लेफ्ट ऑफ नीरज। नीरज दे लेफ्ट विच कौन होएगा, पंकज होएगा। ठीक है। सो हु इज टू द लेफ्ट ऑफ नीरज, इतने पंकज है, पंकज इज टू द लेफ्ट ऑफ नीरज। सो लिखा है हु इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ पर्सन, पर्सन इतने कौन होएगा, पंकज ही होएगा। सो हु इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ पर्सन ऑफ पंकज, पंकज दे नॉर्थ ते ईस्ट विच कौन होएगा, आंसर इज विनय। थर्ड आंसर आ गया। सो क्वेश्चन की सीगा, नीरज दे जो लैफ्ट दे विच खड़ा है ਉਹਦੇ नॉर्थ ईस्ट विच कौन है। सो नीरज दे लैफ्ट च पंकज खड़ा है, तो ਉਹਦੇ नॉर्थ ईस्ट दे विच विनय है। सो आंसर साडा की आ गया, सी। मेक सेंस।
हु इज द एक्सट्रीम वेस्ट? एक्सट्रीम वेस्ट ते कौन होएगा? एक्सट्रीम वेस्ट ते पंकज ही होएगा। बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यस, काने started walking towards east. After moving a distance of 1 kilometer, he turned southwards. ठीक है, सो के ਸੀਗਾ ਉਹ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਈਸਟ, ਤੇ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਈਸਟ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟਰਨ ਟੁਵਰਡ ਸਾਊਥਵਰਡਸ ਐਂਡ ਵਾਕਡ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਸੋ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ? 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਅਗੇਨ ਹੀ ਟਰਨ ਟੂ ਈਸਟ ਐਂਡ ਵਾਕ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਈਸਟ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ? 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। फाइनली ही टर्न टू द नॉर्थ एंड वॉकड 9 किलोमीटर। सो इतों हुण नॉर्थ वाल मुड़ गया, कितना गया? 5 सेगा, तो इतों ज़्यादा ही होएगा फिर 9 किलोमीटर। हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट? वो स्टार्टिंग पॉइंट तो कितनी दूर है? सो जो आप देखिए 1 किलोमीटर से या 2 किलोमीटर से, सो जो मैं कंबाइन करदा, सो अभी 2 किलोमीटर हो जाएगा। आ टोटल डिस्टेंस आ कितना हो जाएगा? 3 किलोमीटर का। ठीक है, अच्छा ये 3 किलोमीटर हो गया इधरली साइड। आ सेगा 5 किलोमीटर, क्योंकि आ 5 है, आ भी 5 सेगा, आ 9 सेगा टोटल। सो दैट मीन्स आ 4 किलोमीटर हो जाएगा। सो आ 3 किलोमीटर है, आ 4 किलोमीटर है। सो दैट मीन्स आ जो डिस्टेंस है कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर। वो किस तरह? अगेन तुम इतने पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, जिहदे बेस का स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर, वो किहदे बराबर हो जाएगा? ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, क्योंकि वो हाइपोटेन्यूज होएगा। ठीक है, सो ये हो गया 9, ये हो गया 16, ये कितना हो गया? 25 का रूट हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। क्या क्लियर हो गया? A started from point P and went 2 kilometer east. So point P तो A ने स्टार्ट किया, तो 2 किलोमीटर किधर चला गया? ईस्ट। He turned right and covered 3 किलोमीटर। सो राइट किधर जाएगा? नीचे नु। कितना किलोमीटर कवर किया? 3 किलोमीटर। At the end of 3 kilometer, his bicycle got punctured. 3 किलोमीटर जान तो बाद बाइसिकल पंचर हो जाता है। He left it with the mechanic and turned right and went 1 kilometer. सो उन्हें उत्थे मकैनिक को छड़ दिता। ठीक है, उत्थे पंचर हो गया सी, मकैनिक को छड़ता। At the end of 3 kilometer, he left it with the mechanic and turned right and went 1 kilometer. So तो 1 किलोमीटर राइट चला गया, इधर चला जाएगा। 2 किलोमीटर से हाफ ही होएगा उधर। देन ही टर्न लेफ्ट एंड वेंट 1 किलोमीटर। सो ये तो लेफ्ट किधर जाएगा? नीचे, कितना गया? 1 किलोमीटर। फाइनली ही टर्न राइट एंड आफ्टर वॉकिंग 1 किलोमीटर रीच हिज डेस्टिनेशन। ये तो हम राइट किधर जाएगा? इधरली साइड, कितना गया? 1 किलोमीटर। तो इतने अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। ठीक है, सो क्वेश्चन की है 21/22। फर्स्ट क्वेश्चन की है, हाउ फार इज ए's डेस्टिनेशन फ्रॉम P? ए दा डेस्टिनेशन, ए इत्थे हुण इत्थे पहुंच गया ना, वो P तो कितनी दूर है? सो आह दसना है आपां। सो आपां जे देखिए 1 सेगा 3 सेगा, सो टोटल 4 किलोमीटर हो जाएगा। सो आंसर डी आ जाएगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए सानू कैलकुलेट करना पाएगा। ए पहला 2 किलोमीटर गया, फिर 3 गया, 5 6 7 8। सो आंसर इज बी, 8 किलोमीटर। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 23, फ्रॉम ए पॉइंट एस रोहन वॉकड 30 मीटर टू द नॉर्थ। सो आप एक बेस लवांगे, पॉइंट किहड़ा होएगा? वो एस। रोहन वॉक 30 मीटर टू द नॉर्थ। सो 30 मीटर किधर गया? नॉर्थ।
then after turning to his right walk 30 मीटर सो इधरों राइट मूव किया हो तो कितना मूव किया 30 मीटर इधर he again turned to his right and walked another 50 मीटर इधरों राइट किधर ਨੂੰ जाएगा नीचे तो 50 मीटर मतलब 30 तो ज़्यादा चला जाएगा फिर 20 मीटर ज़्यादा चला जाएगा एंड फाइनली टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 30 मीटर सो इतो राइट टर्न कर जाएगा इधर ਨੂੰ करेगा 30 मीटर क्योंकि ऊपर भी 30 से नीचे भी 30 मतलब ये पॉइंट तो नीचे ही होएगा साउथ विच इन विच डायरेक्शन एंड एट वॉट डिस्टेंस इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एस स्टार्टिंग पॉइंट तो किहड़ी डायरेक्शन च ते कितनी दूर है सो आप 30 आ टोटल 50 सेगा 30 तो 20 मीटर ही होएगा ये तो साउथ वाली होएगा वो स्टार्टिंग पॉइंट तो सो 20 मीटर टू द साउथ सो आंसर क्या रहेगा सी इज इट क्लियर महेश स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स वेस्ट सो एक पॉइंट ले लेने इत्थों महेश वो किधरली साइड जाना शुरू कर दिंदा है वेस्ट आफ्टर वॉकिंग 10 मीटर ही टर्नस टुवर्ड्स नॉर्थ सो इत्थे 10 मीटर जांदा है उस तो बाद किधर नूं टर्न कर जांदा है नॉर्थ अगेन आफ्टर वॉकिंग 20 मीटर ही टर्नस टुवर्ड्स ईस्ट सो इत्थे 20 मीटर जांदा है फिर वो किधर मूव कर जांदा है ईस्ट इधर नूं एंड वॉक्स 10 मीटर सो इधर फिर 10 मीटर मूव करदा है वो हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन एंड इन विच डायरेक्शन सो ओरिजिनल पोजीशन तो कितनी दूर है 20 मीटर दूर है किस डायरेक्शन वाल है नॉर्थ वाल 20 मीटर नॉर्थ ये आंसर आ जाएगा इज इट क्लियर राजू वॉकड 6 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट सो आप एक बेस लवांगे तो उधर 6 किलोमीटर किधर चला जाएगा ईस्ट राजू then he turned to his right and walked 10 किलोमीटर सो इधर राइट नीचे नु चला जाएगा कितना चला जाएगा 10 किलोमीटर he again turned to his right and walked 6 किलोमीटर हुन इधरों राइट किधर जाएगा इधर कितना 6 किलोमीटर he then turned to his left and walked 15 किलोमीटर सो लेफ्ट इधर किधर होएगा हुन नीचे 15 किलोमीटर चलो आप इतने तक ले लेने 15 किलोमीटर एट वॉट डिस्टेंस इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन सो एक्चुअली वो हुन उपरले आ 15 किलोमीटर ते आ तो सानू पता है कितना सेगा 10 किलोमीटर सो हुन स्टार्टिंग पॉइंट तो किधर है साउथ वाल है तो कितनी दूर है 15 ते 10 25 किलोमीटर साउथ इज इट क्लियर कि दोबारा दसा इन चेक करियो क्वेश्चन महेश स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट पी टुवर्ड्स नॉर्थ एंड वॉक 30 मीटर सो पॉइंट पी तो नॉर्थ वाल जाना शुरू कर दिंदा है वो ते कितना जांदा है 30 मीटर ही then turned to left and walked 40 मीटर सो इथों वो लेफ्ट मूव कर जांदा ते कितना मूव करदा है 40 मीटर एंड रीच्ड क्यू सो इत्थे कित्थे पहुंच जांदा है वो क्यू ते at what minimum straight line distance is the point Q from P and in which direction so straight line distance आपका दसना है ठीक है सो आप P से का starting point तो मैं ये started walking from point P so P so आपका दसना है at what minimum straight line distance is point Q from P Q सॉरी मैं राइट ले गया दोबारा एक बार क्वेश्चन चेक कर लेना महेश स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट पी टुवर्ड्स नॉर्थ पी तो वो किधर जाना शुरू कर दिंदा है नॉर्थ एंड वॉक 30 मीटर सो 30 मीटर जाता है ही देन टर्न टू लेफ्ट एंड वॉक 40 मीटर करेक्ट सो इधर वो टर्न कर जाता है लेफ्ट से कितना वॉक करता है 40 मीटर एंड रीच्ड क्यू सो इतने क्यू ते पहुंच जाता है एट वट मिनिमम स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस इज द पॉइंट क्यू from P and in which direction so straight line distance P तो Q ਦਾ कितना होएगा तो किस डायरेक्शन वाल होएगा फर्स्ट ऑफ ऑल 50 मीटर हो जाएगा क्योंकि इतने अगेन पाइथागोरस थ्योरम ला जाएगी 90 डिग्री एंगल है सो 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर एक के बराबर होएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दे तो किस डायरेक्शन वाल है Q P तो सो इधर जो डायरेक्शन होंदा है वो किहड़ा होंदा है नॉर्थ वेस्ट
सो आंसर इज 50 मीटर नॉर्थ वेस्ट, आंसर इज सी। क्या क्लियर हो गया? पूछना है कुछ? 27th की है, इफ संजय स्टार्ट्स फ्रॉम हिज होम एंड मूव्स 400 मीटर नॉर्थ। संजय अपने घरों स्टार्ट कर दिंदा है ते 400 मीटर किधर जांदा है? नॉर्थ। then he is 300 मीटर अवे फ्रॉम हिज शॉप। इत्थों वो अपनी शॉप तो कितनी दूर है? 300 मीटर अवे। ठीक है, कितों? फ्रॉम शॉप तो। हुण आपां नूं की पता ਉਹਦੀ शॉप 300 मीटर किधर है? इधरली साइड है, इधरली साइड है, उपरली साइड है? पता है कि नहीं पता? नहीं पता। if he starts from his home and moves 300 मीटर in east, so जो ईस्ट वाल चला जाता है 300 मीटर, ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਹੋਮ ਹੈ। जो 300 मीटर ईस्ट चला जाता है, then he is 400 मीटर away from his shop, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਉਹ 400 मीटर away है from his shop। ठीक है, how far is his house from his shop? ਉਹਦੀ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ? ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਉਹ 300 मीटर है, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? 400 मीटर है। सो आ इधर ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਆ इधर ਨੂੰ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ 300 मीटर ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ 400 मीटर ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ, ਇਧਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਆ 400 मीटर डायरेक्ट डिस्टेंस आ हो जाएगा, तो 300 मीटर डायरेक्ट डिस्टेंस ये हो जाएगा। कि समझ रहे हो कि नहीं? इन बिटवीन एक कोई जॉइंट नहीं आएगा इत्थे। सो जे आप ये डिस्टेंस दसना है जो कि इत्थे ओदा की होएगा फिर शॉप, थानू डिस्टेंस पता लग गया। सो आ डिस्टेंस कितना होएगा? 500 मीटर, क्योंकि अगेन तुसी इत्थे पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे, 90 डिग्री का एंगल है, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ये। क्या क्लियर हो रहा है? From a point P, Suresh started walking towards south and walked 40 meter. So from a point P, Suresh started walking towards south and walked 40 meter. So point P तो सुरेश ने वॉक करना शुरू किया साउथ विल, तो कितना गया? 40 मीटर। ही then reached, turned towards his left and walked 30 मीटर। सो इथों लेफ्ट मूव कर गया तो कितना गया? 30 मीटर। सो लेफ्ट इधर होएगा, कितना गया? 30 मीटर। एंड रीच्ड पॉइंट क्यू। सो इत्थे जिहड़ा पॉइंट है वो की है? क्यू। द पॉइंट क्यू इज एट वट मिनिमम डिस्टेंस एंड इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द पॉइंट पी। सो पॉइंट पी तो किस डायरेक्शन वाला है क्यू, तो वट मिनिमम डिस्टेंस है? सो आंसर इज इतने 50 मीटर हो जाएगा। किधरली साइड होएगा? साउथ ईस्ट। पॉइंट पी नू बेस लेना है। इज इट क्लियर? 29 to 30। 6 friends are playing a game of cards facing at center। ठीक है, कितने फ्रेंड्स है? 6 फ्रेंड्स है। सुबोध इज टू द राइट ऑफ प्रबोध। सो 6 फ्रेंड्स है। सो लेट्स सपोज गेम खेल रहा है कार्ड्स की फेसिंग द सेंटर। सो आप इधर ले लेने हैं 6 फ्रेंड्स है थे, 1 2 3 4 ठीक है। सो एक परसन इतने बैठे, 2 3 4 5 6 परसन बैठे। इन्होंने सारे का फेस किधर है? सेंटर है। इज इट क्लियर? सुबोध इज टू द राइट ऑफ प्रबोध। जो प्रबोध है इत्थे, सुबोध इज टू द राइट ऑफ प्रबोध, प्रबोध दे राइट दे विच। ठीक है, इधर होएगा सुबोध। देखो जो कोई सर्कल की गल हो जाए, कि गल हो जाए सर्कल, तो जे फेस सेंटर में होवे तो क्लॉकवाइज लैफ्ट हुंदा है ते एंटी क्लॉकवाइज की हुंदा है? राइट। सो प्रबोध इत्थे है, जे आपां बेस लईए तो राइट इधर हो जाएगा सुबोध। सुबोध इज टू द राइट ऑफ प्रबोध। देयर इज 1 पर्सन बिटवीन ऊषा एंड सुधा। पता नहीं हुण ऊषा कित्थे है, सुधा कित्थे है, बट उन्हां दे विच कितने पर्सन है? 1। प्रबीर इज बिटवीन सुबोध एंड उमा।
सुबोध हैगी, सुबोध है आपा को? हाँ सुबोध है, यस और नो? ए सी प्रबोध। सो सुबोध इत्थे है ਤੇ देयर इज वन पर्सन बिटवीन उषा एंड सुधा, प्रबीर इज बिटवीन सुबोध एंड उमा। सो इत्थे आप उमा ले सकते हैं, ठीक है। तो इत्थे कौन आ जाएगा? प्रबीर। एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आलोक, आलोक दे सेकंड लेफ्ट ते है। सो प्रबीर इज बिटवीन उषा एंड उमा एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आलोक। सो प्रबीर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आलोक। सो आलोक आप इत्थे लवांगे क्योंकि वो फस्ट लैफ्ट ते कौन होएगी? उमा। फिर सेकंड लैफ्ट ते कौन हो जाएगा? प्रबीर। तो देयर इज वन पर्सन बिटवीन उमा एंड सुधा। सो उमा इत्थे है तो एक छड़ के इधर तो नहीं होएगा, एक छड़ के इधर ही होएगी फिर सुधा, ठीक है। सो ये सारे पर्सन हो गए, प्रबोध, सुबोध, प्रबीर, उमा, आलोक, सुधा। क्या क्लियर हो गया? सो क्वेश्चन रीड करते हैं। फर्स्ट की है, इफ आलोक एंड सुधा इंटरचेंज देयर पोजीशन, who will be second to the right of प्रबीर? प्रबीर दे किधर दसना है आपा? second to the right। प्रबीर दे second right ते, right हुंदा एंटी क्लॉकवाइज, की हुंदा है? एंटी क्लॉकवाइज। प्रबीर दे फर्स्ट राइट ते उमा है, सेकंड राइट ते आलोक है। सो किहदी इंटरचेंज करनी सी? आलोक ते सुधा। आलोक ते सुधा अपनी जो इंटरचेंज कर लें पोजीशन बिल्कुल है, फिर वो सेकंड राइट ते सुधा ही आ जाएगी। आंसर इज डी। इज इट क्लियर? इन्हां दोनों की पोजीशन की कर देनी आपा? इंटरचेंज। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की है, हु इज टू द राइट ऑफ सुधा? सुधा दे राइट च कौन है? सुधा दे राइट च एंटी क्लॉकवाइज प्रबोध होया। आंसर इज ए। इज इट क्लियर? ओके, हले एक और क्वेश्चन है, to answer the above question which of the following statements can be dispensed with? dispensed ਦਾ मतलब है ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਆਨਸਰਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਓਨਲੀ ਥਰਡ, ਓਨਲੀ ਫੋਰਥ, ਸੀ थर्ड और ओनली, इतने कुछ और होएगा थर्ड और सी ऑप्शन दसो की है? दो मिनट, इतने जो ऑप्शन है ए की है थर्ड ओनली, ठीक है। बी की है फोर्थ ओनली, सी की है थर्ड और ओके आए थे नाले थर्ड और फोर्थ ओनली, जी ओनली। डी की है नन। ते सो केड़ी स्टेटमेंट आप छड़ सकते हैं, मतलब लीव कर सकते हैं, डिस्पेंस कर सकते हैं? देखो इन्हां विचों जे आपां चैक करना होवे, देयर इज वन पर्सन बिटवीन उमा एंड सुबोध, उमा एंड सुबोध ते उमा एंड सुधा, सुधा। एक्चुअली इन्हां दोनों चों कोई आपां जे एक स्टेटमेंट छड़ दईए तो साडा स्टिल आंसर आ जाए, क्योंकि जो आपां प्रबीर तो सुधा आया, सुधा तो आवली लास्ट स्टेटमेंट जे आपां लिख लईए ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਸੁਧਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਮਾ ਤੇ ਸੁਧਾ ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮਾ ਲਿਖ ਲਿਆ, सॉरी ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਲਿਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਲਿਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ, ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੋਲਵ ਦੁਬਾਰਾ, ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੋਲਵ ਦੇਖੋ ਫਿਰ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ? 2 4 6, ठीक है। सारे सेंटर ਨੂੰ फेस कर दो। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਰਕਲ ਦਾ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਲੈਫਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਰਾਈਟ ਕਿੱਦਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਬੋਧ ਇਜ਼ ਟੂ ਦ ਰਾਈਟ ਆਫ ਪ੍ਰਬੋਧ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ? ਪ੍ਰਬੋਧ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਈਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ? ये तेरा क्लियर हो गया। उस बाद लिखा है देयर इज वन पर्सन बिटवीन उमा
एंड सुधा, ठीक है, देयर इज वन पर्सन बिटवीन उमा एंड सुधा। उमा ਤੇ ਸੁਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਰੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੀਰ ਇਜ਼, ਸੋ ਥਰਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਲੇ ਲੀਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਬੀਰ ਇਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ ਸੁਬੋਧ ਐਂਡ ਉਮਾ, ਸੁਬੋਧ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਉਮਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆਏਗਾ, ਪ੍ਰਬੀਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਬੋਧ ਇੱਥੇ, ਉਮਾ ਇੱਧਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਬੀਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਕਿਉਂ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੀਰ ਇਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ ਸੁਧਾ, ਸੁਬੋਧ ਐਂਡ ਉਮਾ, ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਟੂ ਦ ਲੈਫਟ ਆਫ ਅਲੋਕ, ਸੋ ਅਲੋਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਫਟ ਤੇ ਆਏਗਾ ਪ੍ਰਬੀਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਪਲੇਸ ਬਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਹੋਏਗੀ, ਸੁਧਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰੈਕਟ। ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੋ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਥਰਡ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ, सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। सो आंसर इज फर्स्ट ए, थर्ड ओनली, फर्स्ट आंसर ही है। इज इट क्लियर? 32 क्वेश्चन। सीमा इज द 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ आशीष। आशीष ਨੂੰ ਲਿਆ, ठीक है। ਇਹਦਾ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਕਿੱਧਰ ਹੋਏਗਾ, ਵੈਸਟ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਊਥ ਇੱਧਰ, ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਸੀਮਾ, ਸੀਮਾ ਇਜ਼ 40 ਮੀਟਰ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਆਫ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਸੋ ਬੇਸ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਸੀਮਾ ਲਵਾਂ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਜ਼ 40 ਮੀਟਰ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਆਫ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਇੱਧਰ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ 40 ਮੀਟਰ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ 40 ਮੀਟਰ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਹੈ, प्रकाश। प्रकाश इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू सीमा, सीमा के हिसाब नाल प्रकाश किस डायरेक्शन च है, आंसर इज ईस्ट, सी। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, एक मॉर्निंग सनराइज तो बाद, मॉर्निंग की गल हो रही है तो सनराइज किधर हुंदा है, ईस्ट वाल। गंगाधर वॉज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल, सो गंगाधर एक पोल नू फेस करके खड़ा सी। द शैडो ऑफ द पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट, जिहड़ी शैडो है पोल दी वो एग्जैक्टली किधर सीगी ओहदे राइट दे, विच डायरेक्शन वॉज ही फेसिंग, ठीक है। सो जे आपां कंसिडर करिए नॉर्थ साउथ ईस्ट, सॉरी वैस्ट ते ईस्ट, हुण जिहड़ा सनराइज है वो तो ईस्ट वाली होएगा, ठीक है। इदां जे बना दिंदा, हुण बेस इत्थे लेना आपां, सो इत्थे गंगाधर खड़ा है, ठीक है। सो आपां इत्थे अज्यूम करदे हां ते इत्थे पोल है, की है, पोल है। हुण इहदी पोल दी शैडो किधर होएगी, इधर होएगी, वैस्ट वाल, यस और नो। हुण द शैडो ऑफ द पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट, सो जिहड़ी शैडो है, सो दैट मीनस गंगाधर जिहड़ा है ऊपर इत्थे खड़ा है, इधर खड़ा है, क्योंकि इधर तक खड़ा नहीं हो सकता, इधर तक खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि इधर खड़ा होएगा तो ओदी शैडो पोल ते पेगी, तो जे इधर खड़ा होएगा तो शैडो जिहड़ी है गंगाधर दी, सॉरी पोल दी शैडो गंगाधर ते पेगी। हुण तुसीं दसना है कि जिहड़ा गंगाधर है वो पोल दे साउथ च खड़ा है कि पोल दे नॉर्थ च खड़ा है। जे तां गंगाधर इत्थे खड़ा है तो इधरली साइड ओहदा की है राइट, तो इधरली साइड की है ओहदा लैफ्ट, तो जे इधर ऊपर खड़ा है वो नॉर्थ वाल पोल नू फेस करके इधर नू फेस करके खड़ा है, ठीक है। जे नीचे नू फेस करके खड़ा है तो फिर इधरली साइड उधर की है राइट, तो इधरली साइड की है उहदी लैफ्ट। सो एक्चुअली जिहड़ी शैडो है उधर सी, तो गंगाधर दे राइट साइड सी, दैट मीनस गंगाधर ना पोल नू फेस करके खड़ा है, तो नॉर्थ च खड़ा है। विच डायरेक्शन वॉज ही फेसिंग, सो किधर नू फेस कर रहा सी ओह, साउथ वाल। क्या क्लियर हो गया, नहीं क्लियर हुआ, एक बार फिर चेक करते हैं क्वेश्चन नू। सो आपां एक बेस लिया, वो बेस कद है, पोल दा, ठीक है। हुण आ पोल नू मैं एक्सटेंड नहीं कर रहा, उहदे दस रहा कि आ की है एक पोल, सो इहदी शैडो किधर होएगी, क्योंकि सनराइज है कि सनसैट है,
ਸਨਰਾਈਜ਼ ਕਿੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਈਸਟ ਵੱਲ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰੇ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰੇ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਵੀ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੈਡੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੱਧਰ ਹੋਏਗੀ, ਵੈਸਟ ਵੱਲ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫੇਸ ਕਰੋ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੈਡੋ ਤਾਂ ਵੈਸਟ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲ ਦੀ ਸ਼ੈਡੋ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਇੱਧਰ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਵੈਸਟ ਵੱਲ। ਹੁਣ ਗੰਗਾਧਰ ਹੈ ਵਾਜ਼ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਫੇਸਿੰਗ ਅ ਪੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਗੰਗਾਧਰ ਹੈ ਉਹ ਪੋਲ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਆ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਗੰਗਾਧਰ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੋਲ ਹੈ, ਆ ਪੋਲ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੀ ਸ਼ੈਡੋ ਇੱਧਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ? ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ? ਇੱਧਰ ਸ਼ੈਡੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੰਗਾਧਰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੰਗਾਧਰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੰਗਾਧਰ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਗੰਗਾਧਰ ਦੀ ਸ਼ੈਡੋ ਪੋਲ ਤੇ ਪਏਗੀ। ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਪੋਲ ਦੀ ਸ਼ੈਡੋ ਗੰਗਾਧਰ ਤੇ ਪਏਗੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ the shadow of the pole fell exactly to his right, which direction was he facing? ਸੋ ਗੰਗਾਧਰ ਜੇ ਪੋਲ ਨੂੰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਸਾਊਥ ਵੱਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਪੋਲ ਦੇ ਸਾਊਥ 'ਚ ਖੜਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਰਥ ਫੇਸ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੋਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਤੇ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਈਟ, ਤੇ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ, ਲੈਫਟ ਤੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਫਿਰ ਸ਼ੈਡੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੰਗਾਧਰ ਦੇ ਲੈਫਟ 'ਚ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਗੰਗਾਧਰ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਹੈ ਪੋਲ ਦੇ ਨਾਰਥ ਵੱਲ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਊਥ ਵੱਲ ਫੇਸ ਕਰੇਗਾ ਪੋਲ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਲੈਫਟ, ਤੇ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੰਗਾਧਰ ਦਾ ਰਾਈਟ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ, ਤੇ ਪੋਲ ਦੀ ਸ਼ੈਡੋ ਵੀ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਵੈਸਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਵੀ ਵੈਸਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ। ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ? ਸੋ ਫਿਰ ਫੇਸ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ, ਸਾਊਥ ਵੱਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਨ ਜਨਰਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਲਈਏ ਉਹ ਈਸਟ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਕਿੱਧਰ ਹੁੰਦਾ, ਈਸਟ ਵੱਲ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਰਥ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਰਾਈਟ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਈਸਟ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਨਾਰਥ, ਉਹਦੇ ਬੈਕ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਊਥ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲੈਫਟ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਵੈਸਟ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਈਸਟ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਊਥ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਰਥ। ਕੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਤੁਹਾਡਾ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਈ ਈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਈਟ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲ ਦੀ ਸ਼ੈਡੋ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਈਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਨ ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਈਸਟ ਵੱਲ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਪੋਲ ਦੀ ਸ਼ੈਡੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੈਫਟ ਵੈਸਟ ਵੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੰਗਾਧਰ ਦਾ ਰਾਈਟ ਜੇ ਵੈਸਟ ਵੱਲ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਲੈਫਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਈਸਟ ਵੱਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਵੈਸਟ ਵੱਲ ਹੈ ਤੇ ਲੈਫਟ ਈਸਟ ਵੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਫੇਸ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਊਥ ਵੱਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਊਥ। ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ? ਸੋ ਜੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਜੇ ਈਸਟ ਹੈ, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੈ, ਵੈਸਟ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਰੰਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਨਾਰਥ, ਤੇ ਬੈਕ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਊਥ। ਬਟ ਜੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਵੈਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ, ਈਸਟ, ਤੇ ਫਰੰਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ, ਸਾਊਥ, ਫਰੰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਊਥ, ਤੇ बैक की हो जाएगा नॉर्थ। नेक्स्ट है स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट एस महेश वॉक 20 मीटर टूवर्ड्स साउथ। सो एक एस पॉइंट लिया ਆਪਾਂ ਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 25 मीटर किधर गया, साउथ। ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 50 मीटर। सो लेफ्ट किधर आएगा, इधर कितना गया, 50 मीटर। He again turned to his left and walked 25 मीटर। सो इधर लेफ्ट किधर चला जाएगा, ऊपर कितना गया, 25 मीटर। अभी 25 से अभी 25 है तो सेम हो जाएगा। आफ्टर ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 60 मीटर। आफ्टर दिस ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 60 मीटर। सो इतों हुण वो लेफ्ट मूव करे तो 60 मीटर, दैट मीनस फिर ये पॉइंट को क्रॉस कर जाएगा 10 मीटर ना। ठीक है, 10 मीटर ना क्रॉस क्यों कर जाएगा, क्योंकि टोटल 50 मीटर तो ऊपर वाला सी, टोटल ताई 60 मीटर होएगा अगला। ठीक है, एंड रीच्ड पॉइंट टी। सो इतने टी पॉइंट ते पहुंच गया हो। हाउ फार इज महेश फ्रॉम पॉइंट एस एंड इन विच डायरेक्शन। एस तो विच डायरेक्शन वाल, ईस्ट वेस्ट वाल चला जाएगा 10 मीटर वेस्ट। सो आंसर क्या आ गया, ए। सो स्टार्टिंग पॉइंट तो वो इधर कितना गया 10 मीटर, तो किधर गया, वेस्ट। सो आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 35।
Pushpak walking from point P towards south. So एक base लिया आपा, so वो किधर जाना शुरू करता उन्हें, south. Point किधर सी P, ठीक है. Point P तो उन्हें किधर start कर देता है जाना south. After walking 40 meter he took a left turn. So 40 meter गया, उसके बाद उन्होंने केड़ी टर्न ले ली, लेफ्ट टर्न. देन ही वॉक 30 मीटर एंड रीच पॉइंट क्यू. सो 30 मीटर हो गया तो इतने केड़ा पॉइंट आ गया, क्यू, ठीक है. he took a left turn and then he walked 30 meter and reached point q. What is the straight line distance between p and q? Straight line distance again 50 meter आ जाएगा, and towards which direction of p? p दे किस direction होएगा, ये साउथ ईस्ट हो जाएगा. क्या आंसर थर्ड आ गया. One morning after sunrise, Ritu and Kavita were talking to each other face to face at Tilak Square in Pune. So एक morning sunrise ਦੇ time ਰੀਤੂ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ face to face ਤਿਲਕ ਸਕੁਆਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ. If Kavita's shadow was exactly to right of Ritu, which direction Kavita was facing? So ਦੇਖੋ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਰਿਤੂ, ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਬਟ ਉੱਪਰ ਵੀ ਰਿਤੂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਨੀਚੇ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ, ठीक है. कुछ भी हो सकता है. सो इधर आप ईस्ट लवांगे, इधर वेस्ट लवांगे. सो जो सनराइज होया तो ईस्ट वाल होएगा, फिर तो जो सनराइज होया वो ईस्ट वाल होएगा, तो उन्होंने शैडो किधर होनी चाहिए, वैस्ट दे विच. अच्छा, इफ कविता शैडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ रितु, सो कविता की जी शैडो सी और रितु के राइट विच सी, दैट मीनस कविता फिर इधर खड़ी होएगी, क्योंकि कविता की शैडो इधर होएगी. तो कविता की शैडो जे वैस्ट विच है तो उधर रितु का की है, राइट है. तो फिर यदा मतलब रितु का राइट फिर वैस्ट विच हो गया, तो फिर रितु का लैफ्ट इधर हो जाएगा, इधर उदा राइट हो जाएगा, ठीक है. इधर लैफ्ट हो गया, इधर राइट होया, तो फिर दैट मीनस फिर उदा फेस किधर होएगा, साउथ. विच डायरेक्शन कविता वॉज फेसिंग? सो कविता का एक्चुअली फेस किधर होएगा, फिर नॉर्थ. एक बार मैं फिर दस दें, कविता की शैडो किधर सी, वैस्ट वाल, ठीक है. तो वैस्ट वाल रितु का की सीगा, वैस्ट वाल रितु का की सीगा, राइट. वैसे राइट किधरली साइड होंदा है, ईस्ट वाल, बट इधर रितु का राइट की सीगा, वैस्ट. यस और नो? तो फिर रितु का लैफ्ट की होएगा, ईस्ट. सो फिर रितु का फेस किधर होना चाहिए, साउथ, बट फिर कविता का फेस किधर होएगा, नॉर्थ. सो सानू कविता का फेस पूछा है, सो आंसर किया जाएगा नॉर्थ. क्या क्वेश्चन समझ आ रहा है कि नहीं? प्रदीप वॉक्स 10 मीटर वेस्टवर्ड. सो प्रदीप है जड़ा, ठीक है, और 10 मीटर गया कितना, किधर, वेस्टवर्ड. ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर. सो इथों लेफ्ट नीचे चला जाएगा, कितना वॉक किया, 10 मीटर. ही देन अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर. सो इथों लेफ्ट मूव कर जाता है, कितना चला गया, सॉरी नीचे नू लेफ्ट इधर हो जाएगा, 10 मीटर. अगेन ही टेक्स ए 45 डिग्री टर्न राइटवर्ड्स एंड वॉक स्ट्रेट. सो 45 डिग्री राइटवर्ड्स मुड़ गया. सो राइटवर्ड किधरली साइड होएगा, इधरली साइड 45 डिग्री राइटवर्ड्स एंड वॉक स्ट्रेट. सो 45 डिग्री इधर होएगा, स्ट्रेट उधर चल रहा है. इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ, किस डायरेक्शन वो वॉक कर रहा है. सो इधरली साइड की होंगे साउथ वेस्ट. ਹੁਣ 45 डिग्री की होंगे. सो फॉर एग्जाम्पल देखो, कोई परसन ऊपर ਨੂੰ जा रहा है नॉर्थ वाल, जो लैफ्ट मुड़ जाए वो इधर मुड़ जाएगा, राइट मुड़ जाए इधर मुड़ जाएगा. याद रखो ये हमेशा 90 डिग्री एंगल होंगे. कितना, जो लैफ्ट मुड़िया तो इधर मुड़ जाएगा, तो जो राइट मुड़िया तो इधर मुड़ जाएगा, बट ये हमेशा किहड़ा एंगल होएगा, 90 डिग्री. सो कहने की लोड़ नहीं होंगी कि वो 90 डिग्री लैफ्ट चला गया, 90 डिग्री राइट चला गया. बट जो 45 लैफ्ट या राइट चले, 45 डिग्री मुड़िया, सो दैट मीनस वो एक्चुअली इधर गया, क्योंकि आ 45 डिग्री होंगे. समझ रहे हो कि नहीं? या फिर जो 45 डिग्री राइट होया तो फिर वो इधर इधरों गया होएगा. सो 45 डिग्री है. ये एकदम यू टर्न नहीं होंगी, ठीक है. सो बट ये होंगी एक तरह यू टर्न नहीं है 45 डिग्री. सो दैट मीनस वो इधर तुर पाया लैफ्ट. समझ रहे हो कि नहीं? हाँ 45 डिग्री हो जाएगा. सो जो 90 डिग्री है, सो दैट मीनस इधर लैफ्ट मुड़ गया. ऐदा भी हो सकता है कि 135 डिग्री हो जाए, सो दैट मीनस पूरा इधर तुर जाएगा. आप पूरा 135 डिग्री हो जाएगा.
क्या समझ पा रहे हो कि नहीं? सो आप 45 आ, क्योंकि आप 45 हो गया, आ भी 45 हो गया, 90 हो गया तो आ भी 45 हो गया, समझ रहे हो? सो 45 45 45 टोटल कितना हो जाएगा? 135। ओके 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 ओके, ठीक है। 2 मिनट एक बार चेक कर दें। तो शुरू किया, इधर गया 10 मीटर, फिर इधर गया 10 मीटर, फिर इधर गया 10 मीटर। क्वेश्चन एक बार चेक कर लिया। प्रदीप वॉक्स 10 मीटर वेस्टवर्ड। सो आप बेस लिया 10 मीटर, किधर गया? वेस्टवर्ड। ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक्स 10 मीटर। सो ये तो लेफ्ट मूव करेगा नीचे 10 मीटर्स। ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक्स 10 मीटर। सो अगेन लेफ्ट मूव करके इधर मूव कर देगा 10 मीटर्स। Again, he takes a 45-degree turn rightwards and walks straight. In which direction is he facing now? ठीक है, सो एक्चुअली वो सीधा जा रहा है, ठीक है। जो राइटवर्ड्स मूव करता है दैट मीन्स इधर मूव करेगा। सो आप एंगल इथों लवांगे एक्चुअली 90 डिग्री, ठीक है। सो पूरा मूव कर गया। जो 45 डिग्री मूव किया फिर वो इधर मूव किया एक्चुअली 45 डिग्री। सो पूरा वो फेस ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, फेस ਉਹਦਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸੀ। ਜੋ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮੂਵ ਕੀਤਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 45 डिग्री एंगल ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰ ਗਿਆ। क्लियर हो गया कि नहीं? सो 90 डिग्री ना पूरा नहीं मूव किया, या उस तो ज़्यादा 135 डिग्री ना मूव नहीं किया। सो 45 डिग्री ना मूव कर गया, दैट मीनस फिर वो इधरली डायरेक्शन जा रहा है। मतलब वो पूरा राइट टर्न नहीं लिया, उन्हें हाफ राइट टर्न लिया। सो इनू आप की कहांगे? हाफ राइट टर्न। इज इट क्लियर? सो हाफ राइट टर्न लिया उन्हें। सो इस डायरेक्शन फिर वो की आएगा? साउथ ईस्ट। डी आंसर है, ठीक है। इज इट क्लियर? कुछ पूछना है जो पूछ सा? 38. A starts from his office and walks 3 kilometer towards north. So office तो तुरया हो 20 ले ले ऑफिस नु 3 किलोमीटर किधर गया? नॉर्थ। ही देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। राइट इधर चला जाएगा, कितना गया? 2 किलोमीटर। एंड टर्न्स राइट एंड वॉक 5 किलोमीटर। फिर तो राइट किधर चला जाएगा? नीचे, कितना गया? 5 किलोमीटर। ये 3 तो ज़्यादा हो जाएगा फिर। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर। ये तो लेफ्ट किधर जाएगा फिर? इधर, कितना गया? 2 किलोमीटर। एंड देन अगेन टर्न्स राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर। हूँ राइट किधर ਨੂੰ जाएगा? नीचे 2 किलोमीटर। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? स्टार्टिंग पॉइंट तो किस डायरेक्शन वाल होएगा? साउथ ईस्ट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्शन ही दसनी सी सिर्फ। इज इट क्लियर? ए वॉक्स 3 किलोमीटर नॉर्थवर्ड्स। सो ए है वो किधर जाता है? 3 किलोमीटर नॉर्थवर्ड्स। एंड देन ही टर्न्स लेफ्ट, इतो लेफ्ट मूव कर गया हो, एंड गोज 2 किलोमीटर। सो 2 किलोमीटर जाता है। ही अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड गोज 3 किलोमीटर। सो इधरों लेफ्ट नीचे चला जाएगा हो, इतने आ जाएगा। सो ये कितना है? 3 किलोमीटर। एंड टर्न्स टुवर्ड्स हिज राइट एंड वॉक स्ट्रेट। सुने थे हूँ टर्न कर जाता राइट। सो राइट किधर टर्न करेगा? इधर वॉक करता है स्ट्रेट, ऐदी है। इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ? सो किधर मूव कर रहा है? वेस्ट। इज इट क्लियर? बानू वॉक्स साउथवर्ड्स देन टेक्स ए हाफ राइट टर्न। हाफ राइट टर्न मतलब कितना होया? 45 डिग्री। सो डॉन बानू वॉक्स साउथवर्ड। सो साउथवर्ड्स हो जा रहा है, ठीक है। हूँ राइट ਇਹਦਾ ਕਿੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਹੋਏਗਾ? ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਹੋਏਗਾ ਰਾਈਟ, ਬਟ ਇਹ ਹਾਫ ਰਾਈਟ ਟਰਨ ਲੈਂਦਾ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇੱਧਰ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਰਾਈਟ ਟਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਇਹਨੇ। Banu walks outward and takes half right turn, and then
ਇਹ ਲੈਫਟ ਟਰਨ ਸੇ ਲੈਫਟ ਟਰਨ ਲਿਆ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਫਿਰ ਲੈਫਟ ਟਰਨ ਲਏਗਾ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਇਜ਼ ਇਟ ਕਲੀਅਰ? ਇਨ ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਹੀ ਵਾਕਿੰਗ ਨਾਓ, ਸੋ ਇੱਧਰ ਅਗੇਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਊਥ ਈਸਟ। I start from my office facing southwards and go 8 kilometers. So I start करदा है southward जाना office तो कितना 8 kilometer and right then right and go 8 kilometer right इधर किधर होएगा, इधर कितना 8 kilometer then turn right होना चाहिए। in which direction am I from the starting point? Starting point तो मैं किस direction ਵਿੱਚ ਹਾਂ, so south west। ठीक है, सो ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰਸ ਹੈ 41 ਤੱਕ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਦੁਬਾਰਾ।